Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 28 में रेलवे बेदखली नोटिस पर विरोध, स्थानीय स्तर पर सुनवाई का आश्वासन। रेलवे के बेदखली नोटिस को लेकर वार्ड नंबर 28 के निवासियों ने कटिहार में प्रस्तावित सुनवाई पर आपत्ति जताई। पूर्व माकपा पार्षद जय चक्रवर्ती के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सिलीगुड़ी एडीआरएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर स्थानीय स्तर पर सुनवाई की मांग की। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को सुनवाई के लिए कटिहार जाने की जरूरत नहीं होगी और सिलीगुड़ी में ही उचित व्यवस्था की जाएगी। हमारे जो 28 नंबर वार्डे যে কলোনিগুলোতে রেলের পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে তাদেরকে দেখা করতে বলা হয়েছে এবং এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ার যাওয়ার একটা কথা বলা হয়েছিল যে কাটিয়ারে গিয়ে সকলেই হিয়ারিংটা হবে এবং আমরা এই নিয়ে আইডব্লিউ অফিস আমরা সেখানটায় আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম সমস্ত গরিব মানুষদের নিয়ে এবং আমরা তারা বলেছিলেন যে এখানটা হিয়ারিং হবে এবং আমরা এখানে এসেছি আজকে আমরা এখানে এডিআরএম সাহেবকে বললাম দেখুন সাহেব এরা সব গরিব মানুষরা কীভাবে কাটিয়ার যাবে, এত দূর যাবে কীভাবে, তাদের থাকা যাওয়া খাওয়া একটা বিরাট অর্থের সমস্যা হবে। আমরা চাই উন্নয়ন হোক, কিন্তু আমরা আবারও বলছি যে পুনর্বাসন দিয়ে গরিব মানুষের পুনর্বাসন দিয়েই তারপরে উচ্ছেদের প্রসঙ্গটা আসবে। दिल्ली के जंतर मंतर की घटना के विरोध में कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों का मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर की घटना के विरोध में कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध मार्च निकाला। मार्च कलकत्ता हाईकोर्ट के बी गेट से शुरू होकर सिटी सिविल कोर्ट में समाप्त हुआ। वकीलों ने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना और देश की संप्रभुता की रक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने की कोशिशों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। বিষয়টা খুব পরিষ্কার। বিষয়টা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2014 পর যারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদের একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হচ্ছে যে সংবিধানটাকে পাল্টে দাও। তাদের মাথায় রয়েছে হিন্দু রাষ্ট্র, সেই মাথা থেকেই তারা সাংবিধানিক যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলো আছে, সাংবিধানিক যে প্রতিষ্ঠান আছে, সব জায়গায় তারা তাদের একেবারে হিন্দু রাষ্ট্র মতাবলম্বী মানুষকে বসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। আপনারা দেখেছেন নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকা নিয়েছে, গোটা ভারতবর্ষের বুকে 3 কোটির ওপর মানুষের নাম বাদ। কি ছেলে খেলা হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রায় 35 লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, এখনও 27 লক্ষ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যে তাদের কী হবে তার ঠিক নেই। মানুষের জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা ভয় তৈরি করে দেওয়া, এটা এক ধরনের ফ্যাসিবাদী ঝোঁক যেটা এই সরকার লালন পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সংবিধান এবং সংবিধানকে রক্ষা करा, संवैधानिक जो मूल्य। सिलीगुड़ी के जलेश्वरी बाजार में कार चोरी की कोशिश, युवक रंगे हाथों गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के जलेश्वरी बाजार से सटे इलाके में कार चोरी करने की कोशिश कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार एक चालक अपनी 4 पहिया गाड़ी को धोने के लिए सड़क किनारे खड़ी कर पास की दुकान में गया था। इसी दौरान युवक ने कार का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। गाड़ी के चालक की नजर पड़ते ही उसने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी की। सूचना मिलने पर आशीघर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को स्थानीय लोगों से छुड़ाकर थाने ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त युवक को पिछले दिन भी इलाके में संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया था। पूछताछ के दौरान वह वहां से भाग गया था। इसके बाद आज दोबारा इलाके में पहुंचकर कार चोरी की कोशिश करने पर वह लोगों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। প্রত্যেকটা ছেলে পেলে বলতে পারবে কালকেও সাইকেল লেগে কালকেও পালাচ্ছিল, আমরা তখন ওকে ধরলাম ভবেশ মোড় একদম ট্রাফিকের সামনে। এই ছেলেটাও ছিল, এই যে আমার বন্ধুটা, এই ছেলেই কালকে রাত্রেবেলা ওকে আমরা ধরলাম সাইকেল নিয়ে ভবেশ মোড়ের এরিয়ার মধ্যে, একদম ভবেশ মোড় ট্রাফিকের সামনে। ও বলছে যে আরে ও বলছে যে আমাকে পুলিশ সবাই চেনে, আমাকে কারো বাবা আমার দিকে কালকে রাত্রেবেলা এই কথা কালকে এখন দেখলাম এইখানে কালকেও বলছে যে পুলিশ আমাকে চেনে, ট্রাফিক এই চেনে। আমি বললাম ঠিক আছে ভাই,
এই ব্যাপার আছে। এই ছেলেই কালকে রাত্রেবেলা ওকে ধরা হয়েছে। এর পরিচয় পাওয়া গেল, কোথায় বাড়ি বা কিছু জানা গেল? ভুলভাল বলতেছে, খারাপ বলছে। মানে এই অঞ্চলে চুরি করার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালকে রাত্রেবেলা একে আমরা 10টার সময় ধরলাম। আমরা বাইক নিয়ে যাচ্ছিলাম, একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছিল ভবেশ মোড় থেকে। আমার বন্ধু আর আমরা ছিলাম বাইকের মধ্যে। কালকে ওকে ধরা হয়েছিল ভবেশ মোড় ট্রাফিকের মধ্যে। তখন NH10 की सुरक्षा और चालकों की समस्याओं को लेकर कालिम्पोंग चालक महासंघ की NHIDCL से बैठक। कालिम्पोंग चालक महासंघ ने NH10 की सुरक्षा और चालकों यात्रियों की समस्याओं को लेकर सालूगाड़ा स्थित NHIDCL कार्यालय में बैठक की। अध्यक्ष महेंद्र गुरुंग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपकर खतरनाक और संकरे हिस्सों में सुरक्षा रेलिंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय और चालकों के लिए सुविधाओं की मांग की। साथ ही राजमार्ग पर सार्वजनिक शौचालय बनाने की भी मांग रखी गई। NHIDCL ने मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। धुनबाका सम्पूर्ण चालकहरूलाई सँगसँगै हाम्रो साधारण जनताहरूलाई यो मिडियाको मार्फत तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ र NHIDCL-मा हामीले राखेको बुँदा मुताबिक यहाँले भन्नुभयो र हामीले सब कुरो जति सक्दो हामी गर्छौँ भनेर उहाँले भनिदिएको फलस्वरूपले हामीले डिमान्ड पनि राखेका छौँ कि यहाँनिर टोइलेटको फेसिलिटी हुनुपर्छ भनेर। टोइलेट चाहिँ अब फेसिलिटी पाउँदैन भने NHIDCL यत्रो ठुलो कम्पनीको। जाम से राहत के लिए सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान, लेफ्ट लेन में चलने की अपील। शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस और पानी टंकी ट्रैफिक गार्ड ने संयुक्त अभियान चलाया। प्रमुख चौराहों पर माइकिंग कर बस, ऑटो, टोटो और निजी वाहन चालकों से लेफ्ट लेन में चलने की अपील की गई। पुलिस ने नियम तोड़ने वाले चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान और निगरानी आगे भी जारी रहेगी। टैंकर चालकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित। सड़क हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से NJP ट्रैफिक गार्ड ने भारत पेट्रोलियम के टैंकर चालकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में DCP ट्रैफिक काजी शमसुद्दीन अहमद समेत पुलिस और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी मौजूद रहे। चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों के पालन, ओवर स्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने से बचने की जानकारी दी गई। DCP ने जिम्मेदारी से वाहन चलाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में चालकों को पानी की बोतलें और छाते भी वितरित किए गए। तो हम रेगुलरली एवरी साल में एक बार वन डे रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जो टैंकर लॉरी का है, जो उनका सेफ्टी के संबंधित सारे प्रोग्राम। और आज के दिन में हमारा वेस्ट बंगाल पुलिस डिपार्टमेंट के उनके तरफ से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट सिलीगुड़ी पुलिस डिपार्टमेंट से एक रोड सेफ्टी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो उसके लिए हमारा साथ में DC साहब आए हुए हैं और ADC मैडम भी आई हुई हैं और ACP साहब भी आए हुए हैं और पूरा रोड सेफ्टी का जानकारी दिया है और सभी ड्राइवर्स को उसके संबंधित में और कैसे उसको गाड़ी सही तरीके से चलाना है और डिफेंसिव ड्राइविंग कैसे करनी है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है रोड में और क्या क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी है, उसके संबंध में सारी जानकारी दिया गया है। सो हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time.
Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ. પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી. પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ. પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भएको टिकट बाट. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। गुप्त सूचना के आधार पर विधाननगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित हवाला गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 4 किलोग्राम सोना बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार शुरुआती जांच में इस मामले के पीछे एक बड़े संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका सामने आई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सोने के स्रोत और इसकी संभावित सप्लाई के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही गिरोह के मुख्य सरगनाओं और अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी गई है। स्कूल मैदान में घुटने भर पानी, छात्रों ने स्कूल बहिष्कार कर सड़क जाम किया। फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर -1 ग्राम पंचायत अंतर्गत बुदारू गांव प्राथमिक विद्यालय के मैदान में घुटने भर पानी जमा होने से छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और बीडीओ व स्कूल इंस्पेक्टर को कई बार जानकारी देने के बावजूद समाधान नहीं हुआ। जल जमाव के विरोध में अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूल मैदान में गंदा पानी जमा है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि जल जमाव से छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ मिड डे मील और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। আমাদের মাঠে অনেক জল, অন্য জলগুলো এই দিক থেকে আসে, এখানে জমা হয়। মিড ডে মিলের জায়গায় অনেক জল, স্কুলে অনেক নোংরা টুংরা ঢুকে যায় জলের সাথে। তারপরে জলের যোগ আছে অনেক, যখন নামি আমরা ওখান হাত পা অনেক চুলকাই, ভালো করে আমরা রাতে ঘুমাতে পাই না। খাবারের জায়গায় ওখানে অনেক জল আছে। তো আজকে কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছো? তোমরা স্কুলে যাবে না? স্কুল যাব না, স্কুলে যাই তো অনেক জল, স্কুলে আমরা কেমন করে যাব? এক হাঁটু জল এখানে। তো এই বিষয় নিয়ে স্কুলের মাস্টার মশাইদের বলেছো? হ্যাঁ বলেছি। কি নাম তোমার? एमडी आसिफ हुसैन। पोराझार इलाके से चोरी हुई मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान एमडी मकसद के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 20 जुलाई को पोराझार इलाके के नौका घाट से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस ने अभियान चलाकर चोरी की बाइक बरामद कर ली। आरोप है कि एमडी मकसद बाइक को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति या बाइक चोरी गिरोह भी शामिल है या नहीं। बीमार बेटी से मिलने जा रहे पिता के साथ रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हो गया।
बेटी के घर पहुंचने से पहले ही एक भीषण सड़क दुर्घटना में पिता की मौत हो गई। ये दुखद घटना सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी इलाके में घटी। इस असमय दुर्घटना से छबाबिटा इलाके में गहरा शोक छा गया है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम टुकड़ो मोहम्मद था और वे छबाबिटा इलाके के निवासी थे। गुरुवार शाम काम खत्म करने के बाद वे अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में बेटी के लिए वे बड़े प्यार से मिठाई भी खरीदी थी, लेकिन बेटी के घर पहुंचने से पहले ही फुलबाड़ी के पास वे हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें लहूलुहान हालत में तुरंत बचाकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल NBMCH पहुंचाया। हालांकि अस्पताल के कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाथ में मिठाई लिए पिता अपनी बेटी के घर तक नहीं पहुंच सके। इस खबर से परिवारजन और रिश्तेदार स्तब्ध हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। আমাদের এই ছবিটা গ্রামের ছোট ভাই একটা বয়স 41 বছরের মতো, নাম টুকরু মাহমুদ। কালকে কাজের শেষে ওর মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিল। ওর মেয়ে অসুস্থ ছিল। যাওয়ার পথে ফুলবাড়ি ক্রস করে যে পেট্রোল পাম্পটা, সেখানে একটি ছোট চাকা 4 চাকা গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে এবং সে পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। কি কাজ করতো কি শুনছেন? সে একটা আটা মিলের কোম্পানিতে, যেটা এখনও চালু হয় নাই, ওখানে কাজ করছিল। ওখান থেকে সম্ভবত হাজিরা টাজিরা তুলে তারপর মেয়েকে দেখতে যাচ্ছিল। মেয়ে অসুস্থ ছিল। মেয়ের বাড়ি আমাইদিঘি। কি নাম? ছেলের নাম হচ্ছে টুকরু মাহমুদ। টুকরু মাহমুদ কত বছর বয়স হবে? আনুমানিক ধরে নেন 41 বছর, 41-42 বছর। পরিবারে তো কে কে রয়েছে? পরিবারে ওর স্ত্রী রয়েছে, ওর ছেলে রয়েছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে কোথায়? तो की अवस्था এখন দেখছেন? करला नदी में युवक की मौत, बाबूपाड़ा इलाके में सनसनी। शुक्रवार सुबह बाबूपाड़ा इलाके में करला नदी में एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने युवक को नदी में संकट में देखा और उसे बाहर निकालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सूचना पर जलपाईगुड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। করলা নদীতে এখানে আপনার হচ্ছে আমার তো ওই পারে বাড়ি, শুনলাম যে এখানে একটা কি সুসাইড করছে নাকি, জলে ডুবে মারা গেছে। মানে কি উনি কি লাভ দিয়েছে? আমি তো ছিলাম না, আমি তো বাড়িতে, এখানে এসে শুনলাম। এখানে একটা ড্রাইভার ছিল, এই যে উনি পাড়ায় বলছি যে কীভাবে হলো, আপনি এসে কি শুনলেন? আমি তো এসে দেখছি যে বডি তুললো, এই যে এখানে বডি পড়ে আছে। আচ্ছা, ওনার বাড়ি কি এখানে আশেপাশে? না, আমার হাতিম পাড়া, ওই পারে বাড়ি। ওই পারে বাড়ি? আর ওনার বাড়ি যে মারা গেছে ও চিনি না। আপনার কি? এখনো কোনো কেউ চিনতেই পারছে না।